Hello everyone and welcome back to the class once again. Today we will start a new chapter of our textbook Flamingo, chapter number 5, Indigo by Louis Fisher. Before we read the story, let us learn something about the author, the historical background, the title, the theme and the major characters in the story as well. Let us see who is Mr. Louis Fisher. He was a Jewish American journalist. This chapter, Indigo, is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi, which was reviewed as one of the best books ever written on Mahatma Gandhi by Times Educational Supplement. He greatly admired Mahatma Gandhi. That is why in the year 1942, he visited him in his Sebagram ashram in Maharashtra and stayed with him for 2 months. So let us see the historical background of the story. The historical background of the story takes us back to the year 1917 when Champaran Satyagraha or Champaran movement took place. It was a movement by the indigo planters of Champaran against the tyranny of the British landlord system. This movement is known as the first civil disobedience movement in the history of India. And of course, this movement was the first movement led by Mahatma Gandhi after his return from South Africa. So the title of the story is Indigo. Since the story is all about the indigo planters of Champaran against the British tyranny, so that is why their oppression, their injustices done to them and how they fought against them bravely under the leadership of Mahatma Gandhi, the story talks about that. So here we can say that Indigo is justified as a title here. So let us see the theme of the story. The theme of the story suggests that under an effective leadership, anything can be achieved or any problems can be sorted out. As shown by Mahatma Gandhi in the story, how he led the peasants of Champaran to secure the justice through convincing argumentation and negotiation. All of you are aware that Mahatma Gandhi का जो principle है life में वो non-violence और truth था. So यहाँ पे यही दिखाया गया है कि through non-violence, through arguments, through negotiation, any battle can be won. ये दिखाया गया. That is the dominating theme in the story. So let us see the introduction to the characters as well. So definitely you will come across many characters in the story, but the dominant character in the story is Mahatma Gandhi, one who led the movement, and Rajkumar Shukla, a poor peasant from the Champaran district of Bihar. So the story Indigo opens in the year 1916 in the month of December when Mahatma Gandhi was there in Lucknow attending Indian National Congress convention. More than 2,300 participants from across the country were there and Rajkumar Shukla was one among them. Rajkumar Shukla was a poor and emaciated peasant from Champaran. He came to the convention with his concerns of the injustices being done to the peasants of Champaran by the British landlords. He came there with a hope that if he laid his problems before the leaders of the nation, then definitely they would help them out from that oppressive situation. But somehow, someone told him that he should speak to Mahatma Gandhi. That is why he directly went to Mahatma Gandhi and introduced himself that, "Sir, I am Rajkumar Shukla and I am from Champaran district of Bihar and I want you to visit my district." At this, Mahatma Gandhi didn't say a word. क्योंकि महात्मा गांधी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से वापस आया है और जो चंपारण है उसके लिए नया चीज था. उसको मालूम नहीं था कि ये चंपारण कहाँ लोकेटेड है. So let me tell you guys that in the early 20th century, sharecropping system was prevalent in Bihar, particularly in Champaran. Now, what is this sharecropping system? Sharecropping system is a system of agriculture in which the land will be given. You need to work as a tenant in a land given to you. आपको एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाएगा और उस प्लॉट ऑफ लैंड में आपको एक टेनेंट की तरह उसमें काम करना पड़ेगा. एंड इन दैट पीरियड व्हाट वाज द अरेंजमेंट कि आपको जो प्लॉट ऑफ लैंड दिया गया है उसमें 15% लैंड में आपको क्या करना है, इंडिगो प्लांट करना है. इंडिगो वाज ए चीप कमर्शियल क्रॉप ऑफ दैट पीरियड. और उस इंडिगो को क्या करना है, हार्वेस्ट में सबका सबको लेके रिटर्न कर देना है. किसको? लैंड ओनर को, एज ए रेंट, भाड़ा के तौर पर. So that was the system prevailing in Champaran. And what did the Indian peasants get? They got nothing. They got a big zero. क्योंकि इंडिगो प्लांट किया है लेकिन पूरा का पूरा
किसको रहना पड़ रहा है? ब्रिटिश लैंड लॉज को एज ए रेंट। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये इनजस्टिस हो रहा था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसीलिए दिस राजकुमार शुक्ला was very much disturbed and frustrated about the system, and he decided to attend a Indian National Congress convention। इसीलिए वो वहां पे लखनऊ में आए अपना प्रॉब्लम्स को लेकर। So let me tell you that this Rajkumar Shukla, though he was illiterate peasant, but he was very resolute. What is the meaning of resolute? Determined. Illiterate तो था लेकिन वो बहुत determined था। Determined कैसे था? महात्मा गांधी आफ्टर लखनऊ कन्वेंशन के बाद में जहां जहां वो मीटिंग के लिए गया, ही वॉज अ नेशनल फिगर, तो वो जहां जहां गया उसका पीछा नहीं छोड़ा राजकुमार शुक्ला ने, पूंछ की तरह उनका पीछा किया। एंड एट लास्ट व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड एट हिज आश्रम इन अहमदाबाद, ही वेंट टू हिम एंड विथ फोल्डेड हैंड्स रिक्वेस्टेड हिम, सर प्लीज फिक्स ए डेट, एक तारीख फिक्स कर दीजिए ताकि मैं उस तारीख को आऊं और आपको मैं वहां से लेकर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चंपारण लेके जा सकूं। Mahatma Gandhi, on the other hand, he was greatly impressed by the resoluteness of this farmer, of this peasant. इसीलिए उसने कहा, he gave him his words that I am coming to Calcutta in such and such date for a convention. वहां आओ, वहां से मुझे लेके अपना डिस्ट्रिक्ट लेके चलो। So when Mahatma Gandhi went to Calcutta for attending a convention, to his utter surprise, this Rajkumar Shukla was already present there. ऑलरेडी वो वहां पे प्रेजेंट था महात्मा गांधी के आने से पहले। इससे ये पता चलता कि ही वॉज वेरी रेजोल्यूट, ही वॉज डिटरमाइंड टू टेक महात्मा गांधी अलोंग विथ हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रूक करके उसको लेके जाना ही है, इतना डिटरमाइंड था। सो व्हेन द कन्वेंशन वॉज ओवर, महात्मा गांधी एंड दिस राजकुमार शुक्ला दे बोर्डेड ए ट्रेन टू पटना। पटना वो लोग क्यों गए? पटना महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद से मिलने गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज ए फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वॉज ए लॉयर बाय प्रोफेशन। इसीलिए महात्मा गांधी उसके पास गए ताकि वो ग्राउंड रियलिटी चेक कर सके कि एग्जैक्टली चंपारण में क्या हो रहा है। ऑल ऑफ यू नो दैट महात्मा गांधी प्रिंसिपल इन लाइफ वॉज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सच्चाई और नॉन वायलेंस वो उसका वेपन था, सत्याग्रह भी उसका वेपन था। तो उसी को चेक करने के लिए वो राजेंद्र प्रसाद के पास गया पटना में। बट अनफॉर्चुनेटली राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट हिज होम। वो अपना घर पे नहीं था, कुछ काम से वो बाहर गए थे। हिज सर्वेंट वॉज प्रेजेंट देयर। सो लेट मी टेल यू हाउ महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला वॉज ट्रीटेड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का घर में उनका नौकर ने महात्मा गांधी को सोच लिया कि वो भी एक पेजेंट है बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल अपीयरेंस, इसीलिए उसको चेयर तक बैठने के लिए नहीं दिया, उनको फ्लोर में बैठने के लिए कहा। महात्मा गांधी विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो फ्लोर में बैठ गए। एंड लेट मी टेल यू कि उनको एक ग्लास ऑफ वाटर भी ऑफर नहीं किया गया बिकॉज अनटचेबिलिटी वॉज प्रीवेलिंग इन दैट पीरियड। अनटचेबल, लोअर कास्ट अपर कास्ट सिस्टम वॉज देयर। अगर महात्मा गांधी को पानी दे देंगे तो उन्होंने छू लिया तो फिर हायर क्लास का नहीं छू पाएंगे। दैट वॉज अ सिस्टम। इसलिए उनको एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा गया। बट महात्मा गांधी फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्वेंट। उसने कुछ नहीं कहा, बताया भी नहीं कि मैं लोअर क्लास का नहीं, मैं अपर क्लास का हूं एंड आई एम ए नेशनल लीडर। उसने कुछ नहीं बताया, जैसे वो कहते गए उनको फॉलो करते। सो फ्रॉम पटना अगेन दे बोर्डेड टू मुजफ्फरपुर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे वेंट टू मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में क्यों गया? क्योंकि महात्मा गांधी वांटेड टू गेदर द एक्चुअल और ऑब्टेन द एक्चुअल इंफॉर्मेशन और द सिचुएशन ऑफ चंपारण। चंपारण का जो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल ग्रीवेंसेस क्या है, उसको जानने के लिए वो मुजफ्फरपुर गया। सो मुजफ्फरपुर जब गया, वी विल इंट्रोड्यूस हियर टू द कैरेक्टर्स लाइक जेबी कृपालिनी एंड प्रोफेसर मलकानी। जेबी कृपालिनी वॉज ए कॉलेज लेक्चरर एंड दिस प्रोफेसर मलकानी वॉज ए स्कूल टीचर। रात को पहुंचा वहां पर, उनको रिसीव किया गया राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी को। उसके बाद प्रोफेसर मलकानी जो कि एक स्कूल टीचर था, उनके घर में महात्मा गांधी को 2 days and 2 nights का शेल्टर मिला। सो महात्मा गांधी हियर सेज दैट इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। प्रोफेसर मलकानी का घर में उनको 2 दिन बैठने के लिए शेल्टर दिया गया। महात्मा गांधी कहता है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। क्यों? क्योंकि उस समय
ब्रिटिश रूल वाज देयर, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं जा सकता है। एंड महात्मा गांधी वॉज ए नेशनल फिगर, ही वॉज ए नेशनल लीडर। उनको 2 रात का शेल्टर देना, पनाह देना कहीं ना कहीं प्रोफेसर मलखानी के लिए एक खतरा था, और वो खतरा उसने उठाया, उसने वो रिस्क लिया। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा that it was an extraordinary thing in those days. Okay, so let me tell you, when Mahatma Gandhi arrived in मुजफ्फरपुर, क्या हो गया, पूरा का पूरा चंपारण, तिरहुत, मोतिहारी जितना था, वह जितना एरियाज का पीजेंट्स को पता चल गया that महात्मा गांधी arrived. They didn't know about महात्मा गांधी. महात्मा गांधी कौन है मालूम नहीं है, उनको ये भी मालूम नहीं कि वो दिखने में कैसा है वो भी मालूम नहीं है। सिर्फ उनको ये आइडिया है कि एक महात्मा आया है जो उनका हेल्प करेगा, जो उनको इस ऑपरेसिव सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एक ऐसा महात्मा आया है, उनको सिर्फ इतना आइडिया था। दैट इज वाई ऑन फुट, पैदल चलकर सब महात्मा गांधी को मिलने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचा। सो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑन द इंडियन लॉयर्स, जितना इंडियन लॉयर्स था उसको महात्मा गांधी ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि इंडियन लॉयर्स जो था इंडियन पीजेंट्स के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे, ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ में वो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे थे। इसलिए गांधी जी ने इंडियन लॉयर्स को बुलाया और बुलाकर पूछा कि व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट इज द सिचुएशन, प्रेजेंट अभी सिचुएशन कैसा है, पूछने के लिए उनको बुलाया। सो दिस लॉयर्स केम टू हिम एंड इन्फॉर्म हिम, बताया कि हम लोग केस लड़ रहा है लेकिन अभी तक केस को जीता नहीं है, एंड वी चार्ज ए फीस फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट्स से हम लोग फीस भी चार्ज करते हैं और बहुत ही हाई फीस है। महात्मा गांधी, यू कैन सी हियर, महात्मा गांधी शायद दिस लॉयर्स को स्कोल्ड किया उसने, यू आर एन इंडियन, आप इंडियन है और अपना इंडियन भाई के लिए आप लड़के उनसे इतना हाई फीस चार्ज करना गलत बात है बोलकर उनको गाली दिया, उनको डांटा। उसके बाद उसने कहा लॉ कोर्ट में जाना इट इज यूजलेस, इट इज ए काइंड ऑफ यूजलेस टू गो टू द लॉ कोर्ट। सबसे पहले उनको क्या करना है, महात्मा गांधी ने कहा दैट द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, पीजेंट्स लोग पूरा टूट चुका है और उनके अंदर जो डर है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उस डर को उनके अंदर से निकालना है। दैट्स व्हाट गांधी जी से, दैट फ्रॉम नाउ ऑन इट इज यूजलेस टू गो टू द लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स में जाके फायदा नहीं है, उन लोग टूटा हुआ है ऑलरेडी इतना हाई फीस से, वो लोग डरा हुआ है ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से। सो इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट गांधी वांटेड टू डू इज टू ब्रिंग आउट द फियर फ्रॉम द पीजेंट्स की जो अंदर है डर है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद देखिए, सो आई टोल्ड यू द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। नाउ शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट क्या था, जो ब्रिटिश लैंड लॉस था, जितना चंपारण में जितना भी लैंड था वो सब लार्ज स्टेट्स में बांटा गया था, और वो लार्ज स्टेट्स का ओनर कौन था, ब्रिटिश लैंड लॉस था। इंडियन पीजेंट्स जो टेनेंट की तरह वहां काम कर रहा था, जो भाड़ा में बेचता है या भाड़ा में लेता है, टेनेंट की तरह वहां काम कर रहा था वो। और अरेंजमेंट क्या था कि आपको जितना भी लैंड दिया गया है उसमें से 15% ऑफ दैट लैंड इंडिगो शुड बी प्लांटेड देयर। आई टोल्ड यू इंडिगो वाज ए चीप कमर्शियल क्रॉप, और उस पे आपको क्या करना है, इंडिगो प्लांट, और 15% जो इंडिगो प्लांटेशन है उसको हार्वेस्ट को पूरा का पूरा ब्रिटिश लैंड लॉस को रिटर्न करना है एज अ रेंट। दैट वाज द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। इसीलिए वो लोग परेशान तो था, लेकिन परेशानी कब बढ़ गया, जब सिंथेटिक इंडिगो इंट्रोड्यूस हुआ जर्मनी में। सिंथेटिक इंडिगो इंट्रोड्यूस हुआ जर्मनी में, तो जो नेचुरल इंडिगो था उसको छोड़ दिया ब्रिटिश लैंड लॉस ने। छोड़ के क्या कर दिया, उन लोगों ने कहा कि फार्मर्स लोगों, पीजेंट्स लोगों को कहा कि आप लोग को अभी हम लोग रेंट नहीं लेगा, जितना मिट्टी दिया है उसमें आप पूरा का पूरा क्या लगा सकते हो, लेकिन यू नीड टू पे ए कंपेंसेशन फॉर अ लैंड के लिए आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सो ये तो एक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का चाल था। और जो पीजेंट्स था दे वर इलिटरेट, दे वर इग्नोरेंट, उनको कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए किसी ने क्या किया, खुशी खुशी साइन कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों को दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में उन लोग साइन किया। उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग का जो 15% इंडिगो था उससे हम लोग छुटकारा मिल गया, अभी हम लोग अपना मर्जी कुछ उगा सकता है, सिर्फ कंपनसेशन ही देना है बोल के पैसा दिया है, किसी ने साइन करके पैसा पेड भी कर दिया। और किसी सम ग्रुप ऑफ पीजेंट्स दे रिटोर्टेड
दे एजिटेट अगेंस्ट इट, उन्होंने एजिटेशन किया, रिटोर्ट किया। तो क्या किया, अगेन दिस जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स था, उन लोगों ने कुछ क्रिमिनल्स हायर करके उनको टॉर्चरिंग, थ्रेटनिंग करना शुरू किया। दैट वाज द सिस्टम, दैट वाज द सिचुएशन। उसके बाद क्या हो गया, जब ये इलिटरेट पीजेंट्स को पता चल गया दैट सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, उनको पता चल गया कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैज चीटेड देम, उनके साथ ठगाबाजी किया गया है, उनको डिसीव किया गया है। तो अभी वो लोग कहता है कि आपने हमें ठगाया, हमको ठग के आपने हमसे पैसा भी लिया, साइन भी करवा लिया, अभी हमें अपना मनी को वापस चाहिए, वी वांट आवर मनी बैक। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ऑन द अदर साइड वो कहता है कि तुमने एग्रीमेंट किया, तुमने साइन किया, वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न योर मनी। सो दैट वाज द सिस्टम, दैट वाज द सिचुएशन इन चंपारण व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड। यही माहौल वहां चल रहा था जब महात्मा गांधी वहां पे पहुंचा। सो लेट अस सी, महात्मा गांधी वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। मैंने आपको बताया रिपीटेटिवली, आई एम सेइंग महात्मा गांधी का जो मेथड था इट वॉज वेरी डिफरेंट। वो नॉन वायलेंस का मेथड फॉलो करता था, उसको वेपन का तरह यूज करता था, इसीलिए वो वायलेंट वे में नहीं गया। ऑफिशियली ब्रिटिश कमिश्नर के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया, ऐसा कि ऑफिशियली वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को उसने कंटिन्यू किया। सो महात्मा गांधी अराइव्ड इन मोतिहारी। मोतिहार में पहुंचकर उसने एक घर को अपना ऑफिस का तरह यूज किया और वहां से वो हर चीज को ऑपरेट कर रहे थे। सो आई टोल्ड यू दैट महात्मा गांधी वॉज ए पर्सन विथ नॉन वायलेंस, हिज प्रिंसिपल इन लाइफ वॉज नॉन वायलेंस एंड दिस ट्रूथ, दैट इज वाई ही डिडंट वांट वायलेंस एट ऑल। तो इसीलिए उसने क्या किया, लॉफुली हर चीज को एकदम सिक्वेंसली उसने ऑपरेट करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। सो ही वेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ British Landlords Association to know the actual happening, to know the actual information or data of the system, of the situation prevailing in Champaran. But यहाँ क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ लैंडलॉर्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन ने महात्मा गांधी का इंक्वायरी को डिक्लाइन कर दिया और कहा दैट यू आर एन आउटसाइडर, आप आउटसाइडर हो और आउटसाइडर को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं बोलकर उनको कुछ नहीं दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। महात्मा गांधी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने इतना जवाब में कहा दैट आई एम नॉट एन आउटसाइडर। उसके बाद वो फिर गया दूसरा ऑफिस, ब्रिटिश ऑफिशियल्स कमिश्नर के ऑफिस वो गया। वहां जाकर भी उन्होंने वही चीज पूछा कि मुझे एक्चुअल अकाउंट चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना देर तक कहां तक केस चला गया, मुझे उसके बाद डिटेल्स चाहिए। उसमें भी उसको बुली किया गया और कहा गया दैट यू शुड लीव चंपारण, चंपारण को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ के चला जाओ। बट महात्मा गांधी नहीं गया, वो रुके। और रात के समय क्या हुआ, एक खबर आया, एक न्यूज केम दैट ए पिजन हैज बीन maltreated इन ए नियर बाय विलेज। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ऑन द हंच ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट का हंच में वो गया, बैठा और वो जहां में जो इंसिडेंट हुआ था उसको देखने के लिए वो वहां पे जा रहा था। इतना दूर गया ही नहीं था कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वहां आ गया। आकर महात्मा गांधी को कहा कि ऑफिशियल ऑर्डर दिया कि आप तिरहुत टाउन को छोड़ के नहीं जाओगे, वहां जहां इंसिडेंट हो रहा है वहां पे आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे, आप अपना घर रिटर्न हो जाओ। तो महात्मा गांधी ने माना बात को, लेकिन उसके साथ ही साथ में एक ऑफिशियल नोटिस भी दिया महात्मा गांधी को। एंड यू नो व्हाट वाज द नोटिस अबाउट? नोटिस में ये लिखा था, ये ऑर्डर दिया गया था कि महात्मा गांधी यू शुड लीव चंपारण, चंपारण को छोड़ के चले जाओ बोलकर उसको ऑर्डर दिया गया, ऑफिशियल ऑर्डर पेपर में। सो महात्मा गांधी फर्स्ट ऑर्डर को ओबे किया, लेकिन सेकंड ऑर्डर को उसने लिया, लेकर पेन से उसने कुछ लिखा। डू यू नो व्हाट ही रोट? उसने लिखा आई एम डिसओबेइंग दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को मैं डिसओबे कर रहा हूं। तो आप गवर्नमेंट ऑर्डर को जब डिसओबे करते तो क्या होता है? अरेस्ट वारंट आ जाता है, सम्मन आ जाता है, कोर्ट में हियरिंग आ जाता है। तो नेक्स्ट डे महात्मा गांधी को सम्मन के लिए बुलाया गया। द होल नाइट, उस रात महात्मा गांधी सोया नहीं, रात भर वो अवेक रहा, जाकर वो बैठा। जितना उसका लॉयर फ्रेंड्स था उसको खबर भेजा कि हमको सम्मन आ गया है, हमको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, उसके बाद सिचुएशन को देखो कैसा करना है, क्या करना है, लेट अस प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद वो अपना आश्रम में भी खबर भेजता रहा और वाइसरॉय ऑफ
इंडिया को भी उसने खबर भेजा। इस तरह से आई टोल्ड यू महात्मा गांधी का जो काम था वो सिस्टमेटिकली होता था। नाउ व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया, महात्मा गांधी को अभी कोर्ट में प्रेजेंट होना है। सो लेट मी टेल यू, इट इज सेड दैट द टाउन ऑफ मोतीहारी वाज फुल ऑफ ब्लैक पीजेंट्स। मोतीहारी में पहली बार पीजेंट्स ने अपना गट्स रख के, हिम्मत करके, डेयरिंग करके गवर्नमेंट का खिलाफ आवाज उठाया, और उनको ये खबर मिला था कि जो महात्मा, जो चैंपियन उनको बचाने के लिए आया है, उनको अरेस्ट होने वाला है। वो कोर्ट में समन भेजा गया है कोर्ट ने, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा चलकर कोर्ट के बाहर पूरा भीड़ लगा दी। सो गांधी जी सेज दैट द बैटल ऑफ चंपारण हैज स्टार्टेड। क्योंकि उन्होंने, आपको अगर याद है तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, पीजेंट्स के अंदर में जो डर है उस डर को निकालना है, बाहर करना है। अभी इसे पता चल रहा है कि उन्होंने अपना डर को बाहर निकाल लिया, एंड दे आर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ द गवर्नमेंट। So the government was baffled after witnessing a large crowd outside the court. That is why the prosecutor requested the judge to postpone the trial. But Mahatma Gandhi, on the other hand, he protested against the delay. He says that he protested in his conflict of duties. What is the conflict of duty that Mahatma Gandhi is talking about? Here you will get 2 points. First, he says that he don't want to set a bad example as a lawbreaker, since he himself was a lawyer. And secondly, he came to Champaran to help the oppressed peasants and to provide a national and humanitarian service to them. He wanted to be the voice of the conscience. That is why he says that he agitated or he protested against the delay in the pronouncing of sentence because of these two conflict of duties. So after what happened, the magistrate said that he would not deliver a judgment for 2 hours. So 2 hours के लिए रेस्ट दिया गया। रेस्ट देने के बाद क्या किया गया, महात्मा गांधी से कहा गया कि उस 2 घंटा के अंदर, जब 1 घंटा हो गया, 20 मिनट्स हो जाएगा, तो आप अपने लिए बेल के लिए प्लीड कीजिए। महात्मा गांधी ने उसको डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद जब कोर्ट जो है रिकन्वेन हुआ है, मजिस्ट्रेट ने कहा दैट ही इज नॉट गोइंग टू डिलीवर ए जजमेंट फॉर अ फ्यू वीक्स। सो महात्मा गांधी वॉज फ्री, ही वॉज एट लिबर्टी। सो इन दिस वे वी सो हाउ महात्मा गांधी वॉज treated, how Mahatma Gandhi from office to office he visited, systematically he worked here, you can say. Systematically उसने काम किया। मैंने बताया था that this Champaran Satyagraha, it was the first Satyagraha in the history of India. उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना मॉडस ऑपरेंडी स्टार्ट किया, कैसे किया, और कैसे उनका जो लॉयर फ्रेंड्स था उसमें उन लोगों ने साथ दिया, और किस तरह से चंपारण जो मूवमेंट था, जो चंपारण सत्याग्रह था, वो कैसे ट्रायम्फ होके बाहर आया, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन स्टडी वेल एंड स्टे सेफ, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ नॉट देन माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो ड्रॉप इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो stay happy, stay healthy. Take care.